Welcome all of you to my channel. Today I am going to discuss about the crisis in oil prices. The oil price crisis due to COVID-19. So as many of you would have known about this crisis that started from OPEC plus meeting in which Saudi Arabia has asked Russia to cut down the oil production so that demand supply will be matched as the demand of oil is reduced due to lockdown in many countries, mainly large countries like India and China is the biggest importer, and then India. Both countries had lockdown. China has opened lockdown, but it's not fully open. It is partially open, and same the case with India. India is also open lockdown, but it's partial. The volume of traffic on the streets is the not same before lockdown. So the demand of oil is decreased drastically, and it's not today. I am making video in May, but it is 1 and 2 months before. In April and March, the demand was too less when the lockdown was more stringent. So at that time demand fell a lot. So हुआ क्या फिर कि Russia has said no, that I will not cut the price. I will not cut the production of oil, because if they cut the production of oil, then US will be get benefited, because US produce so much oil. When we add both production of Arabia and Russia alone, US produce that much oil. So if Russia cut the production, then US will increase its production and market capture कर लेता US. So Russia thought that we should not do it, and Russia ने मना कर दिया. Then Saudi Arabia also thought that we should teach Russia a lesson, and they also increase their supply. So supply side is more and demand is less. So simple demand supply law will suggest that the price will crash. So it crashed. -$47 the price was of WTI in Washington. And also the crude oil price of Saudi Arabia and in these countries, it was also around 10-15, which is normally $54-$60, $80. So OPEC, oil producing exporting countries, they have made their cartel so that they can increase prices of petroleum, but that failed because politicization among themselves. So ये काम नहीं करा, और वो -47 हुआ. तो उसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि -47 का मतलब है कि वो ही हमें पैसा देंगे, तेल भी हमें देंगे और वो पैसा भी हमें देंगे, बिकॉज दे डोंट हैव द फैसिलिटी टू स्टोर द ऑयल. उनके पास ऑयल स्टोर करने की फैसिलिटी नहीं है, और वो अपने वो बंद कर नहीं सकते. बंद करेंगे तो ज़्यादा बड़ा नुकसान है. तो उन्होंने सोची कोई नहीं, थोड़े टाइम के लिए हम इनको पैसों में दे देते हैं. सो इसका अगर हम ओवरऑल देखें, सो इट विल बी बेनिफिट कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना, बिकॉज आर इम्पोर्ट विल बी रिड्यूस्ड अलॉट. एंड और क्या है कि जैसे इंडिया में के पेट्रोल के प्राइस तो सेम रहेंगे 80 रुपये ही, वैसे क्रूड ऑयल की तरह भी घट जाए तो सरकार का मार्जिन विल इंक्रीज. तो गवर्नमेंट्स रेवेन्यू विल इंक्रीज एट द टाइम व्हेन टैक्सेस इज लेस. इनडायरेक्ट टैक्स तो सरकार का जा ही नहीं रहे, क्योंकि लोग वह दुकानों पर ज़्यादा सामान खरीद नहीं रहे. तो इनडायरेक्ट टैक्स का में डायरेक्ट टैक्स तो चलो जा ही रहा है, डायरेक्ट टैक्स तो जाता रहेगा, और साथ ही साथ पेट्रोल से पैसा आएगा, तो अपना इम्पोर्ट बिल भी अपना घटेगा. ठीक है, थोड़ा नुकसान है जो रेमिटेंस आता है वहाँ से. केरला वेरला जैसे स्टेट है जिनके बहुत सारे बंदे 30 लाख और नियर बाई 30 लाख इंडियंस आर इन गल्फ कंट्रीज. सो मैनी ऑफ देम विल लूज देयर जॉब, दे विल कम इन अगेन इंडिया. सो इट इज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट. सो बट चाइना विल बी बेनिफिटेड मोस्ट बिकॉज इट डिप्लोमेसी, you know, they are very hard diplomats. So they will make a good deal and will get cheap oil for much time, and their manufacturing they will increase. So उनके दोनों आते घी में है. इंडिया का एक और फ़ायदा है, अगर आपने सुना हो, इंडिया का स्ट्रेटेजिक रिजर्व. सो इंडिया विल फिल देयर स्ट्रेटेजिक रिजर्व. स्ट्रेटेजिक रिजर्व क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल इंडिया लेट्स टेक एग्जांपल दैट नेक्स्ट मंथ इंडिया एंड पाकिस्तान आर एट वॉर. अब इंडिया पाकिस्तान इज एट वॉर, सो
मान लो कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की साइड देने लगे कि भाई पाकिस्तान उसका मेंबर भी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ओआईसी का, सो वी विल सपोर्ट पाकिस्तान। तो अब हमारे पास विल नॉट हैव ऑयल, हमको सऊदी अरेबिया ऑयल देगा नहीं, और मान लो कोई भी देश हमें ऑयल नहीं देता, और देता भी है तो मान लो इंडियन ओशन में चाइना अपने एयरक्राफ्ट कैरियर लगा के उनको ब्लॉक कर देता है। सो व्हाट विल हैपन टू आवर कंट्री, वी विल नॉट हैव ऑयल। अगर ऑयल नहीं होगा तो जहाज़ कैसे उड़ेंगे, कैसे हमारे टैंक चलेंगे, कैसे हम लड़ेंगे? ऐसे तो इंडिया पे कब्जा हो जाएगा, इंडिया विल बी डिफीटेड। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने का यही फ़ायदा है कि हमारा कम से कम 1-2 महीना तेल चल जाए, तो 1-2 महीने में तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। और फिर भी अगर 1-2 महीने में अगर कोई दिक्कत हुई, सो वी कैन यूज़ न्यूक्लियर वेपन। हम तो जाएंगे सनम पर तुम्हें भी ले डूबेंगे, ये भी काम कर सकते हैं हम, पाकिस्तान चाइना का। एंड ऑल ऑफ देम न्यू दिस पैसिफिस्ट पॉलिसी हैज़ स्टार्टेड ड्यू टू न्यूक्लियर वेपन। तो ये अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व का फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, वन मोर थिंग, वन मोर important aspect which I forgot to mention in between, but right now I should mention it, that वन थिंग कैन ऑल्सो हैपन के वेस्ट एशिया में क्राइसिस आ सकता है बहुत बड़ा। एज यू नो, मोस्ट ऑफ द वेस्ट एशियन कंट्रीज आर नॉट डेमोक्रेटिक कंट्रीज, दे आर ऑटोक्रेटिक, दे आर रूल्ड बाई डिक्टेटर्स। सो पर क्या होता है कि वहाँ के जो डिक्टेटर हैं उनसे लोग ज़्यादा खफा नहीं होते, बिकॉज पैसा अंधा है और डिक्टेटर खर्च करता रहता है, लोगों को इल्यूजन में फंसाए रखता है। तो लोग बागों को पता नहीं रहता कि उनके कितने राइट्स उनके लिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल वहाँ पे जो वुमेन है, सो वुमेन कांट, अभी ड्राइव का उन्हें मिल गया है, देश से बाहर अकेली नहीं जा सकती, तो कितने सारे उनके राइट्स का आनंद हो रहा है। पर वहाँ के लोग आवाज़ नहीं उठाते क्योंकि उनको पैसा वो पहुँचा देता है, सब्सिडी वब्सिडी दे देता है, बेरोजगारी भत्ता दे देता है, और पैसा अंधा है। पर जब पैसा नहीं होगा तो फिर वहाँ के लोगों में दहशत बन जाएगी और डेमोक्रेसी आ जाएगी। अरब स्प्रिंग मैनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट अरब स्प्रिंग। हुआ क्या था उसमें कि जो पुअर कंट्री थी बहुत सारी, वहाँ तो ख़त्म हो गए थे ये डिक्टेटर, बट ये जो रिच कंट्री थी इन्होंने पैसा दे दे के इन्होंने बचा लिया अपने आप को। पर ज़्यादा टाइम के लिए ये भी नहीं बचा पाएंगे, ऐसा कोई क्राइसिस आएगा तो ये उड़ेंगी, और डेमोक्रेसी आएगी पूरे वर्ल्ड में, इसमें तो कोई शक नहीं है मेरे को। सो आई होप आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बताना कि हाउ वाज माय वीडियो, वाज आई एबल टू कन्विंस यू, आपको मैं समझा पाया नहीं समझा पाया है, सो प्लीज़ टेल मी।